السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے معراج کے بارے میں۔ اس معراج کے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی چیزیں دکھائی گئی۔ آپ پر دودھ اور شراب پیش کی گئی۔ آپ نے دودھ لیا۔ اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ کو پرکرتی کی راہ بتائی گئی یا آپ نے پرکرتی پالی، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے جنت میں 4 نہریں دیکھی، جو ظاہری پرتیکش، 2 باطنی اپرتیکش۔ ظاہری نہریں نیل و فرات ندیاں تھیں، یعنی ان کا تتو تھا، اور باطنی 2 نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں۔ نیل و فرات دیکھنے کا مطلب شاید یہ ہے کہ آپ کی رسالت نیل و فرات کی ہری بھری گھاٹیوں کو اپنا وطن بنائے گی۔ واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے داروغہ کو بھی دیکھا۔ وہ ہنستا نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور پرسنتا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کو بھی دیکھا۔ آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھا جاتے تھے، اور ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ کی طرح تھے، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑے جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے، جو دوسری اور ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا۔ ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں روندتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا۔ ان کے سامنے تازہ اور چکنا گوشت تھا، اور اسی کے پہلو میں ساتھ ساتھ سڑا ہوا چچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور چکنا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چچڑا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہر پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے گربھوتی ہوتی ہیں، لیکن نہ جاننے کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے بیچ لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے مکے والوں کا ایک قافلہ بھی دیکھا، اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ کے دعوے کی سچائی کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ نے آپ کو دکھائی تھی، تو قوم کے جھٹلانے اور پیڑا پہنچانے میں اور تیزی آ گئی۔ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی استھتی بیان کریں۔ اس پر اللہ نے آپ پر بیت المقدس ظاہر کر دیا، اور وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ نے قوم کو اس کی نشانیاں بتانی شروع کی اور ان سے
किसी बात का खंडन ना बन पड़ा। आपने जाते और आते हुए उनके काफिले से मिलने का उल्लेख किया और बतलाया कि उनके आने का समय क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट की भी निशानदेही की जो काफिले के आगे आगे आ रहा था। फिर जैसा कुछ आपने बताया था वैसा ही साबित हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी नफ़रत में वृद्धि ही हुई और इन जालिमों ने कुफ्र करते हुए कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इसी मौके पर सिद्दीक़ की उपाधि दी गई, क्योंकि आपने इस घटना की उस वक्त पुष्टि की जबकि और लोगों ने झुठला दिया था। मेराज की उपलब्धि बताते हुए कम से कम शब्दों में जो बड़ी बात कही गई है वह यह है ताकि हम अल्लाह आपको अपनी कुछ निशानियां दिखाए। और नबियों के बारे में भी यही अल्लाह की सुन्नत है। इरशाद है कि और इसी तरह हमने इब्राहिम को आसमान व ज़मीन की निज़ामे सल्तनत दिखाई और ताकि वह यकीन करने वालों में से हो। और मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया ताकि हम तुम्हें अपनी कुछ बड़ी निशानियां दिखाई। फिर इन निशानियों के दिखाने का जो अभिप्राय था उसे भी अल्लाह ने अपने इरशाद ताकि वह विश्वास करने वालों में से हो द्वारा स्पष्ट किया। चुनाचे जब नबियों के ज्ञान को इस तरह की चीज़ें दिखाकर सनद हासिल हो जाती थी तो उन्हें ऐनुल यकीन का वह स्थान मिल जाता था जिसका अंदाज़ा लगाना संभव नहीं कि देखी हुई सी चीज़ सुनी चीज़ों जैसी नहीं होती। और यही वजह है कि पैगंबर अल्लाह की राह में ऐसी ऐसी परेशानियां झेल लेते थे जिन्हें कोई और झेल ही नहीं सकता। हकीकत में इनकी निगाहों में दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी मच्छर के पर के बराबर हैसियत नहीं रखती थी। इसलिए वे इन ताकतों की ओर से होने वाली सख्तियों पर दी जाने वाली पीड़ाओं की कोई परवाह नहीं करते थे। मेराज की इस घटना की छोटी छोटी बातों के भेद खोलने वाली किताबें हैं। हाँ, कुछ मोटी मोटी सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो इस मुबारक सफ़र के स्रोतों से फूट कर नबी की सीरत पर भरपूर रोशनी डालती है। इसलिए यह उन्हें संक्षेप में लिखा जा रहा है। आप देखेंगे कि अल्लाह ने सूरह इसरा में इसरा मेराज का सफ़र की घटना का केवल एक आयत में उल्लेख करके बात का रुख यहूदियों के कुकर्मों, करतूतों और अपराधों के बताने की ओर फेर दिया है। फिर उन्हें बता दिया गया है कि यह कुरान वह रास्ता बताता है जो सबसे सीधा और सही है। कुरान पढ़ने वालों को कभी कभी संदेह हो जाता है कि दोनों बातें बेजोड़ हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह इन शैली में यह इशारा फरमा रहा है कि अब यहूदियों को मानव जाति के नेतृत्व से हटाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे अपराध किए हैं जिनके करने के बाद इस पद पर बाकी नहीं रखा जा सकता। इसलिए अब यह पद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपा जाएगा और इब्राहिमी दावत के दोनों केंद्र उनके अधीन कर दिए जाएंगे। दूसरे शब्दों में अब समय आ गया है कि रूहानी क़ियादत एक उम्मत से दूसरी उम्मत को दे दी जाए, यानी एक ऐसी उम्मत से जिसका इतिहास धोखाधड़ी,
बददयानती, जुल्म और बदकारी से भरा हुआ है। यह नेतृत्व छीनकर एक ऐसी उम्मत के हवाले कर दिया जाए जिससे नेकियों और भलाइयों के सोते फूटेंगे और जिसका पैगंबर सबसे ज़्यादा सीधा रास्ता बताने वाले कुरान की वही से मालामाल है। लेकिन यह नेतृत्व कैसे मिल सकता है जबकि इस उम्मत का रसूल मक्के के पहाड़ों में लोगों के बीच ठोकरें खाता फिर रहा है। उस समय यह एक सवाल था जो एक दूसरी सच्चाई से पर्दा उठा रहा था और वह सच्चाई यह थी कि इस्लामी दावत का एक दौर अपने अंत और पूरा होने के करीब आ लगा है और अब एक दूसरा दौर शुरू होने वाला है जिसकी धारा पहले से अलग होगी। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ आयतों में मुशरिकों को खुली चेतावनी और कड़ी धमकी दी गई है। इरशाद है, और जब हम किसी बस्ती को तबाह करना चाहते हैं तो वहाँ के खाते पीते लोगों को हुक्म देते हैं पर वे खुली मनमानी करते हैं। बस उस बस्ती पर तबाही का कथन सही साबित हो जाता है और हम उसे कुचल कर रख देते हैं। और हमने नूह के बाद कितनी ही कौमों को तबाह कर दिया और तुम्हारा रब अपने बंदों के अपराधों की खबर रखने और देखने के लिए काफ़ी है। फिर इन आयतों के साथ साथ कुछ ऐसी आयतें भी हैं जिनमें मुसलमानों को सांस्कृतिक नियम और विधान बताए गए हैं जिन पर आगे इस्लामी समाज का निर्माण होना था। गोया अब वे किसी ऐसी भूभाग पर अपना ठिकाना बना चुके हैं जहां हर पहलू से उनके मामले उनके अपने हाथ में हैं और उन्होंने एक ऐसी इकाई बना ली है जिस पर समाज की चक्की घुमा करती है। इसलिए इन आयतों में इशारा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द ऐसी शरणस्थली और शांति स्थली पा लेंगे जहां आपके दीन को चैन नसीब होगा। यह इसरा और मेराज की बरकत भरी घटना की तह में छिपी हिकमतों और छिपे भेदों में से एक ऐसा भेद और एक ऐसी हिकमत है जिसका हमारे विषय से सीधा ताल्लुक़ है। इसलिए हमने उचित समझा कि उसे बयान कर दे। इस तरह की दो बड़ी हिकमतों पर नज़र डालने के बाद हमने यह राय बनाई है कि मेराज की यह घटना या तो पहली अक़बा की बैत से कुछ ही पहले की है या अक़बा की दोनों बैतों के बीच की है। अल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।